اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان کئی روز سے مسلسل سرحدی علاقوں میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فوج بھی اس کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ پاکستان نے پنچ ضلع کے قصبہ کیرنی، شاہپور، مینڈھر اور سوکر علاقوں میں چھوٹے اور بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال گولہ باری کی۔ گولہ باری کے دوران کل طالب حسین نامی شخص کے گھر پر مورٹار گرنے سے مکان کو جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا ہے کہ گولے گرنے کی آواز سے ان کی 4 ماہ کی بچی بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان ماہ رمضان میں بھی لگاتار گولہ باری کر کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ لوگوں میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بنکر نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دقتوں کا سامنا ہے۔ لوگوں نے الزام لگایا کہ منظوری کے باوجود ان کے علاقے میں بنکر تعمیر نہیں کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ یہ بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا مستقل حل تلاش کریں۔ جب گولا لگا پھر یہ اس نے وہ گھر والی بھی گھسیٹی، ہمیں بھی گھسیٹ کے ادھر سائڈ میں پرلے مکان میں لے گیا کہ بھئی ادھر ہو سکتا ہے دوسرا گولا بھی سائڈ میں آگے نکل گیا۔ تو پھر ہم گھبرا کے پتہ نہیں کتنا اور فائرنگ ہوگی، لیکن فائرنگ بند ہو گئی، اس وجہ سے بچاؤ ہو گیا، خدا نے کیا۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزہ افطاری ہو بھائی؟ ابھی افطاری کی ہے 10 منٹ پہلے۔ مطلب کھانا بنایا تھا آپ نے؟ کھانا ٹائم کتنا لگا اس کا کھانا بنانے کا؟ مطلب روزہ افطاری ڈھنگ سے بھی نہیں ہوا؟ نہیں، خالی پانی سے کیا، تو اس کے بعد کھانا ابھی بنا رہے تھے، پہلے تو کون بناتا۔ احسان کرا اس نے اس ماہ رمضان کے مہینے پہ ہمیں بچا لیا، پتہ نہیں کیوں کیسے موت ہوتی، کیسے کٹ کے ہوتی، کیا ہوتا کیا نہیں ہوتا۔ تو ہماری یہی پاکستان سے یہ اپیل ہے کہ سیول بستی کو نشانہ مت بنائے اور فائر بندی کو بند کیا جائے۔ میں اس نیوز کے مادھیم سے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ اور ایک دوسرا بات کہ ہمیں مورچے نہیں ہیں جناب، مورچوں کیسے نہ، ہمارا یہ دیکھو ایک اوپر ٹین والا مکان ہے، تو یہ لینٹر والا ہے، کہاں جائیں گے ہم، کہاں رہیں گے؟ کچا مکان بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو صلی اللہ ملک نے ہمیں بچایا۔ میں گورنمنٹ سے اور اپنا گورنر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہمیں مورچے دیے جائیں۔ جموں کشمیر میں کرونا وائرس کے کیسز میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک راحت کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک 364 مریض صحت یاب ہونے کے بعد اسپتالوں سے ڈسچارج بھی کیے گئے ہیں۔ آج 29 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ کشمیر میں آج کرونا کے مزید 30 کیس سامنے آئے ہیں۔ ان میں بڈگام سے 15، سری نگر سے 3، بارہ مولہ سے 1، گاندربل سے 3، کلگام سے 5 اور اننت ناگ سے 3 کیس شامل ہیں۔ یوٹی میں وائرس متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 823 ہو گئی ہے۔ بڈگام میں جو مثبت کیس پائے گئے ہیں ان میں 13 رنگریڈ میں قائم ایک انڈسٹریل اسٹیٹ میں کام کر رہے تھے۔ سری نگر میں مثبت پائے گئے تینوں مریض سپر اسپیشلٹی اسپتال سے آئے ہیں۔ کل فوت ہوئے نوجوان کے والد کا ٹیسٹ مثبت پایا گیا۔ اس کے علاوہ ایک تیماردار اور ایک اسپتال کا سویپر مثبت پائے گئے۔ ادھر جموں کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ہی یہاں ٹیسٹنگ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر میں روزانہ لگ بھگ 3500 افراد کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ کل جن افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے تھے ان میں کچھ سری نگر کے بون اینڈ جوائنٹ اسپتال میں زیر علاج رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں میں کافی ڈر ہے۔ سری نگر کے سپر اسپیشلٹی اسپتال کے میڈیکل افسر کا ٹیسٹ بھی مثبت آنے کے بعد ان کے کانٹیکٹس کو کوارنٹین کیا جا رہا ہے۔ اس بیچ وادی کشمیر میں لاک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ اس بیچ حزب کمانڈر ریاض نائکو کی ہلاکت کے بعد وادی کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ جمعے کے پیش نظر آج حساس علاقوں میں مزید چوکسی رہی۔ ادھر آج بھی جموں کشمیر میں لوگوں نے مساجد میں نماز جمعہ ادا نہیں کی۔ لوگوں نے گھروں میں ہی نماز ظہر ادا کی۔ کشمیر میں آج بھی موبائل انٹرنیٹ اور موبائل وائس کالنگ سروس بند رہی۔ نصر اللہ پورہ بڈگام میں آج پتھراؤ کا واقعہ پیش آیا۔ اس دوران پتھر لگنے سے ڈی ایس پی بڈگام فیاض گیلانی بھی زخمی ہو گئے۔ علاقے میں سوشل ڈسٹنسنگ کی خلاف ورزی کی شکایت کے بعد انہوں نے گاؤں کا دورہ کیا تھا۔ علاقے میں کافی وقت تک پولیس اور مشتعل افراد کے بیچ جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ایس پی بڈگام نے نیوز 18 کو بتایا کہ فیاض گیلانی کی حالت مستحکم ہے۔ اس سلسلے میں کیس درج کر کے مزید جانچ شروع کر دی گئی ہے۔ جموں میں آج بھی لاک ڈاؤن کا کافی اثر دیکھنے کو ملا۔ دکانیں اور دیگر کاروباری ادارے بند رہے۔ ضروری اشیاء رکھنے والی دکانیں ہی کھلی نظر آئیں۔ جموں کے کچھ علاقے پوری طرح سے سیل کر دیے گئے ہیں۔ بخشی نگر میں کرونا وائرس کا مثبت کیس آنے کے بعد یہاں سخت پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جموں کے مختلف علاقوں میں پولیس کے ناکے لگے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے پولیس لگاتار تعینات ہے۔
यूटी इंतजामिया ने बैरून ममालिक और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने के अमल में मजीद मुतहरक हो गई है। इंतजामिया ने अब तक करीब 33,000 बाशिंदों को वापस जम्मू कश्मीर लाया है। कल दिन में 2800 अफराद लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर पहुंचे। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए दी है। कंसल ने बताया कि आज पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से करीब 3,000 मजदूर और तलबा की वापसी होगी। रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू कश्मीर के दरमानदा बाशिंदों को वापस लाने के लिए ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है। कंसल ने कहा कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों की इंतजामिया और रेलवे हुकाम के साथ बातचीत जारी है। जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है उनको ये सहूलत फराहम की जाएगी। वहीं आज सुबह बांग्लादेश से मेडिकल स्टूडेंट्स का पहला ग्रुप श्रीनगर के लिए रवाना हुआ था। ये तलबा घर वापसी से काफ़ी खुश नज़र आए। इन तलबा ने हिंदुस्तानी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। I'm from Kashmir and we are being evacuated from Bangladesh to Srinagar. It's a direct flight from Bangladesh to Srinagar. I'm really thankful to our Prime Minister Narendra Modi for taking this enormous step. And till now we are facing no problems here and the arrangements have been really nice. We are the first batch leaving from Bangladesh and we are really happy. Hadia Rashid from Medical College for Women and Hospital. My principal name is Roshan Ali and I'm thankful to High Commission highly and especially Akar Joshi who's the first secretary. He has been helping us throughout and thank you so much for the evacuation. We are happy to reach out. Yeah, it was a complete help from our college and embassy, both sides. They were both helping us continuously and we're really helpful, thankful to all of them. बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहूँगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और जो एम्बेसी है हमारी उनका शुक्रगुजार है जो हमको इस मुसीबत में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड टू इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। जी हेल्प आया। लाइक मेरे कॉलेज से मेरी वाइस प्रिंसिपल आई और उन्होंने एश्योर किया मुझे लाइक अगर आपको कुछ भी लगता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। एंड मोर ओवर मेरे लोकल फ्रेंड्स भी थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक तरफ अपने बाशिंदों को बैरून रियासतों से वापस ला रही है, दूसरी जानब यहाँ फंसे गैर मकामी लोगों को भी वापस भेजा जा रहा है। इंतजामिया ने आज लद्दाख के कई बाशिंदों को लद्दाख रवाना किया। छत्तीसगढ़ के 166 मजदूरों को भी उनके आबाई इलाकों के लिए रवाना किया गया। घर जाने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। इन अफराद ने मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम जा रहा है इतने दिनों के बाद, गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया। अब गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ हमें यहाँ मिलेगा बोला है। अभी हम सिकरा में हैं, अब हम अभी 8 बस हो गया यहाँ पे तो सब निकल रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 2.5 महीने के बाद जा रहा हूँ उधर। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ की गवर्नमेंट का और लद्दाख यूटी का भी बहुत बहुत। कठुआ के हथली मोड़ में कायम सनती यूनिट चिनाब टेक्सटाइल मिल्स के मजदूरों ने एहतजाज किया। इन मजदूरों ने पूरी तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज किया। पुलिस हालात को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान मजदूरों ने पुलिस गाड़ी समेत मिल में भी तोड़फोड़ कर दी। इन मजदूरों ने पथराव भी किया। एहतजाज के दौरान कुछ मजदूर और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मजदूरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इनको आधी तनख्वाह दी गई है, इसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने मांग की कि इनको पूरी तनख्वाह दी जाए और इनको अपने आबाई इलाकों में भेजा जाए। एसएसपी कठुआ ने मजदूरों से बात करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो उससे हम लोग का बाल बच्चा का पेट भर जाएगा। सारी दिन सब मेहनत करते हैं, सारी दिन यदि कर रहे हैं, 2000 1000 दे रहे हैं। ये बताइए हम लोग का इंसाफ चाहिए कि तो हम लोग का गांव भेजवाइए और नहीं तो हम लोग का खाने का पूरा साधन दीजिए। परेशानी हम लोग सारा ड्यूटी नहीं आ रहे थे, पिछले महीना हमसे बंद था मिल है, नहीं बुलाया तो जो मेरी दिहाड़ी बन रही वो दे दे, कोई हंगामा नहीं है इसमें, समझे। आज जब लोग हम गए हैं तो हम लोगों को 150 रुपया का हिसाब दिया गया है। सारे पब्लिक जितनी बाहर है सर मकान मालिक ने किराया नहीं छोड़ा है, मकान मालिक ने किराया नहीं छोड़ा, राशन वाले पैसे नहीं छोड़ रहे। सर परेशानी यही है हम लोग को लॉकडाउन में फिर डिप्टी ने बाहर वाले का आने नहीं दिया और सीटीएम वाले सारे डिप्टी कर रहा है, हम लोग को आने नहीं दिया डिप्टी। अब 1 तारीख से जा रही हूँ तो उसको भी वोचर दिया है तो 150 हिसाब से वोचर दिया है। पूरे दिहाड़ी बनता है 8000, पूरे फुल डिप्टी लगाती हूँ तो 1 दिन दिहाड़ी 350। हमको परेशानी है, हमको फुल दिहाड़ी चाहिए। बातचीत हमने इनसे की है, इनके सारी परेशानियों का अजाला जो है हम सीटीएम के मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे
हम ज़रूर इनकी बात उन तक रखेंगे और कोशिश करेंगे जो भी नियमों में बैठता है, कानून में बैठता है, या उससे बाहर जाके भी अगर 2 चीज़ें करनी पड़ें तो मुझे लगता है कि हम करेंगे। जख्मी हुए हैं सर कुछ? हाँ जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का एक उसूल होता है, ज़ख़म तो खैर पुलिस वालों को भी लगना है, कुछ मज़दूर भी इसके अंदर हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और दुखदाई घटना है, ऐसी उम्मीद हमें थी नहीं। ये सारा अचानक हुआ, जब अंदर बिल्डअप हो रहा था उस समय पुलिस को जानकारी थोड़ी सी लेट अंदर से मिली। अंदरूनी मामला होता है, स्टाफ मैनेजमेंट बात कर रहा था, बट इस पूरी महामारी में आप देखें लोगों को काम नहीं है, घरों में बैठे हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे भी बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं फूटना था। तो आज का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हो गया है। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने कहा कि जिले में कोरोना की बढ़ती तादाद बायस तशवीश है, ताहम इंतजामिया हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। डीसी ने लोगों से लॉकडाउन का मुकम्मल नफाज मुमकिन बनाने की अपील की। उन्होंने इन बातों का इजहार अनंतनाग के PHC मटन शाजीपुरा कम्युनिटी हॉल, पुराने जिला अस्पताल समेत दीगर तनसीबात का मुआयना करने के दौरान किया। उन्होंने जिले में मजीद क्वारंटीन मराकज़ कायम करने पर भी अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जिले में ज़रूरी अशिया का वाफर स्टॉक मौजूद है, लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने मटन PHC का दौरा किया, वहाँ पे इंतजाम का जायजा लिया और साथ में यहाँ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है इसको भी देखा, तो इसमें क्या क्या इस वक्त हमारे फैसिलिटीज़ क्या हैं और कहीं कहाँ ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है वगैरह, इसके लिए ये दौरा था आज। तो यही मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो इस लॉकडाउन में इसका एहतराम करें, घरों में रहें, बाहर ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यही सबसे बड़ी बात है आज। देखिए हम अपना 100% दे रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे करना है हम इसमें भरपूर तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारी की हैं, बहुत सारी भी इन द प्रोसेस है, तो होपफुली कि हम इस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। नई बुग त्राल में 60 साल खातून का टेस्ट मुस्बत पाया गया है। वो गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इसके बाद पूरे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में खौफ हिरास का माहौल पैदा हो गया है। नई बुग को रेड जोन करार दिया गया है। नज़दीक के 4 देहात डाटसरा, अमीराबाद, नोडल, शेराबाद को बफर जोन करार दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल और दीगर ओहदेदारों के हमरा नई बुग का दौरा किया और वहां सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रेड जोन गाँव में सैंपलिंग का आगाज किया गया है। गाँव में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव भी किया जा रहा है। जोन के लिए क्योंकि नई बुग विलेज अब हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर ये एल्डरली फीमेल के साथ साथ और कॉन्टैक्ट्स का भी जैसे यहाँ पर गुंजाइश है, तो इसमें रेड जोन का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 4 जो मिलानी गांव हैं उनको बफर जोन डिक्लेयर किया गया है और जो गवर्नमेंट ने SOP नोटिफाई की है रेड जोन एरियाज़ के लिए, वो पूरी यहाँ पर 100% जो है वो इन लेटर एंड स्पिरिट यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। मैं वही देखने के लिए ADC साहब के साथ आज आया था जायज़ा लेने के लिए। इसमें सभी एंट्रीज हम लोग जैसे बंद करके एक ही कॉमन एंट्री एग्जिट रखते हैं। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर जो BMO साहिब ही यहाँ पर करेंगे उसको नोटिफाई, उसको छोड़कर किसी की भी आदमी की मूवमेंट यहाँ से अंदर या बाहर नहीं होगी। लारकीपुरा पदगामपुरा अवंतीपुरा में कल शाम एक मुस्बत केस सामने आने के बाद इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। उधर कस्बा पामपुर के नंबलबल इलाके में भी एक मुस्बत केस सामने आने के बाद इलाके को रेड जोन करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघु लंगर ने इन इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। पूरा में भी हमारा जो केस निकला है कल, वो भी जो अभी इनिशियल वर्कअप में हमें पता लगा है उनको भी कोई लीवर एलमेंट है और वो अपनी उस बीमारी के चलते पिछले 2-3 हफ्ते से वो ऑफ एंड ऑन श्रीनगर में उनकी मूवमेंट हो रही थी। सरकारी अस्पताल में वो चेकअप के लिए जा रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से वो वहाँ पर एडमिट भी थे और वहाँ पर उनका सैंपलिंग जो कराया है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने, उसमें उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अब हम लोगों ने कल रात से ही एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हमारे तहसीलदार साहब ने, वहाँ पे हमारे SHO BDOs ने, जो हमारी ब्लॉक लेवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है, उन्होंने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन कर दिया है। अब हम लोग एक उधर भी जायज़ा लेंगे और जैसा मैंने बताया कि ये क्योंकि ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कि उसका सब लोग उसको पालन करें, इम्प्लीमेंट करें। जिला इंतजामिया गांधरबल में लार तहसील के पुत्रमला और पहलीपुरा गांव को रेड जोन करार दिया गया है। कुंडबल और बटपुरा को इंतजामिया ने बफर जोन करार दिया है। इन इलाकों में मुस्बत केस सामने आए हैं। इंतजामिया ने कोरोना को मजीद फैलने से रोकने के लिए इन इलाकों को रेड जोन करार दिया है।
किसी भी शख्स को आने या जाने की इजाज़त नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल और SSP गांधरबल ने इलाके का जायजा लिया। पुत्रमला और पहलीपुरा के 37 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर साहब गए थे उस एरिया में, इन्होंने डिक्लेयर किया था, ऑर्डर किया था रेड जोन का। तो स्ट्रेटेजिकली कहाँ से प्लगिंग करनी है और किस एरिया से ट्रैफिक डाइवर्ट करना है और लोगों को वहाँ से मिक्सिंग ना हो पाए, उसके लिए हमने डिटेल प्लान वर्कआउट किया था। ऑल्दो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 2 ही पॉजिटिव केस हैं, बट ये चेन रिएक्शन है, आप ध्यान नहीं रखेंगे इट विल रेप्लिकेट, इट विल स्प्रेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पब्लिक का रोल है, और ख़ासकर जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, इमाम साहिबान से मेरी इस्तदा है कि आप रोल लें, आप इन लोगों को मैसेजेस दें और इनको रियलाइज़ करवाएं कि इसमें अगर आपने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, वो यही है, घरों में बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अननेसेसरली मिक्सअप मत हों। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मौजूदा सूरत हाल ने हर शोबे के लोगों को काफ़ी मुतासर किया है, लेकिन बच्चे इसके ज़्यादा शिकार हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी बच्चों की मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो गई है। अब तशवीश इस बात की है कि लॉकडाउन की वजह से इन बच्चों के जहन पर मनफी असरात मुरतब न हो। ऐसे में डॉक्टर वालिदैन के रोल की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। पेश है जम्मू से समीर की ये रिपोर्ट। अपने भाई के साथ अपने घर के मेन गेट पर खड़े ईशु भारती पंडिता ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें कभी इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, जहां वो हफ्तों तक अपने घर से बाहर तक नहीं निकल पाएंगे। लॉकडाउन की वजह से यीशु की तरह दीगर बच्चे भी अपने घरों के अंदर ही कैद हो गए हैं। अपने वालिदैन की हिदायत पर अमल करते हुए यीशु कई दिनों से अपने घर से बाहर नहीं निकला है। लॉकडाउन की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफी मनफी असर पड़ा है। घर में कुछ वक्त तक पढ़ाई के अलावा ये बच्चे कुछ और नहीं कर पाते। कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत करना चाहते हैं, मगर 4G इंटरनेट खिदमात मैसर न होने की वजह से इन्हें भी मुश्किलात का सामना है। ये बच्चे अब अपना वक्त टीवी, मोबाइल गेम्स और इसी तरह की दीगर सरगर्मियों में गुजारते हैं। कई बच्चे इस तरह की सूरत हाल में बेचैनी महसूस कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, 1.5 महीने से, क्योंकि मैं और मेरे दोस्त बहुत देर से मतलब कि बाहर नहीं निकले हैं। तो ये बहुत मतलब कि अजीब सा लग रहा है, किसी तरह से मतलब कि बोर भी हो रहे हैं, टाइम पास करना पड़ रहा है, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी वो लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं, तो अजीब लग रहा है, वो तो बोरिंग है। प्रॉब्लम तो हो रही है काफ़ी, क्योंकि हमने मतलब काफ़ी इस चीज़ के लिए हमने मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है, इतना सब कुछ पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है वगैरह, तो सबको मतलब एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो अब वो मतलब अब क्या होगा आगे का, कुछ फ्यूचर का भी कुछ पता नहीं कि कब ठीक होंगी चीज़ें, कब क्या होंगी, कुछ पता नहीं है। एक जगह बैठ के ना मतलब ओवर थिंकिंग की वजह से हर एक चीज़ के बारे में सोचने की वजह से बहुत स्ट्रेस आ जाता है हमारे अंदर। मौजूदा हालात ने वालिदैन को मजीद फिक्रमंद कर दिया है। अगरचे वालिदैन की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरह बच्चों की तवज्जो मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ रखें, मगर ये नाकाफी है। वालिदैन यकीनन बच्चों की तालीम को लेकर तशवीश में है, मगर अब इन्हें ये फिक्र ज्यादा सता रही है कि बच्चे कहीं जहनी तनाव के शिकार न हो जाएं। एज अ पेरेंट ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप बच्चों को किस तरह से हैंडल करते हो, और सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस जो है वो बच्चों में पड़ रहा है। लेकिन बच्चों का एक अलग लाइफस्टाइल रहता है, तो उस वक्त उनका सुबह का जो जैसे उनका सुबह स्कूल जाना है, बच्चों के साथ खेलना, वो करना, ये करना, अब उनको किस तरह से हैंडल करें उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये भी देखना पड़ता है कि कहीं वो मेंटली स्ट्रेस ना हो। डॉक्टरों का कहना है कि इस सूरत हाल में वालिदैन अपने बच्चों का खास ध्यान रखें, बच्चों पर मजीद बोझ न डाला जाए, बच्चों को घरों में तफरीह का सामान फराहम करें और इन्हें मामूल के मुताबिक मुख्तलिफ मुस्बत व दीगर सरगर्मियों में मसरूफ रखें। चिंताएं हैं हमें कि खाने को मिलेगा कि नहीं, स्टॉक करना है, ये सब चीज़ों से अपने बच्चों को दूर रखें, इन डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं करें, बिकॉज बच्चे इस तरह इतने इमोशनली मैच्योर नहीं होते हैं कि वो समझ पाएँ कि ये सब चीज़ें आप क्यों कर रहे हैं, शायद वो डर जाएं। स्कूल के टाइम पे रूटीन थी, वो टाइम पे उठते थे, खाना खाते थे, खेलते थे, वो सब रूटीन उन बच्चों की बनाए रखें। पेरेंट्स के पास समय है, तो अपने बच्चों के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें डिस्कशंस में इस बीमारी के लिए, या अदरवाइज भी
आप उनसे डिस्कस करें ताकि उनका तनाव कम होता रहे। सिक्योरिटी के तनाजुर से हसास जम्मू कश्मीर में डिप्रेशन की शरह पहले से ही बहुत ज़्यादा है। अब कोरोना और उसके बाद हुए लॉकडाउन के बाद यहाँ के बच्चों में नफसियाती तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वो 4 दीवारी में कैद अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत और देखभाल करें ताकि वो अपना नफसियाती तनाव ख़त्म करे और उनका जो मेंटल बैलेंस है वो इन मुश्किल हालात में बरकरार रख सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। नाइकू की हलाकत के बाद वादी में मोबाइल व इंटरनेट खिदमात बंद है। इसकी वजह से लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई मरीज मोबाइल फ़ोन पर डॉक्टरों से तिब्बी मशवरे हासिल करते हैं। बच्चों के दर्स व तदरीस का निज़ाम भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। लोगों का ये कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मोबाइल फ़ोन ही राब्ते का वाहिद ज़रिया है। इसके बंद होने से लोगों में मज़ीद ज़हनी तनाव पैदा होने का खदशा है। हज़ारों मुसीबतें आ गई है, हज़ारों परेशानी आ गई है। सरकार को चाहिए था कि इन चीज़ों पे भी ध्यान दे। अगर वो अपने एक तरह के चीज़ों पे ध्यान देते हैं और इस पे फिर रिव्यू लेते हैं तो उनको इन चीज़ों पे भी रिव्यू लेना चाहिए था कि इस चीज़ से बंद होने से कितनी तकालीफें होती है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, वो मुतासिर हो गए हैं। किसी को किसी के बारे में कोई पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कि हम बहुत पुराने दौर में वापस चले गए हैं। पिछले 2 दिन से नेट भी बंद हुआ है और कॉलिंग भी बंद हुआ है। लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्योंकि आजकल जो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चलते थे वो भी बंद हो चुके हैं इसी वजह से। और दूसरी तरफ जो है कि कोविड-19 जो ये वबा फैली है पूरी दुनिया में, खासकर लोग अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलते थे। इसी वजह है कि अगर फ़ोन खुले होंगे तो उनके साथ राब्ता हो जाता है। और आगे बढ़ेंगे। वाकुरा गांदरबल की मुस्लिम बरादरी ने इंसानियत और भाईचारे की एक मिसाल कायम की है। इन्होंने एक गैर मकामी हिंदू की आखिरी रसूमात अदा की। अनजानी का ताल्लुक पंजाब के गुरदासपुर से था। वो गुज़श्ता कई बरसों से इलाके में बतौर कारपेंटर काम कर रहा था। मकामी लोगों ने आखिरी रसूमात के लिए हर तरह का इंतजाम किया और उसके अहल खाना को शमशान में भी मदद की। अहल खाना ने मकामी लोगों की मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। आखिरी रसूमात के वक्त जहां मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, वहीं कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी की खिलाफ वर्जी भी हुई। आखिरी रसूमात के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा गया। इंतजामिया को सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए इलाके में सख्त पाबंदियां आयद करनी चाहिए। मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत मैं उनका धन्यवाद हूँ। इन्होंने हमारी बहुत मदद की। जहाँ मेरा एक भाई था, अंकल का बेटा, उसकी डेथ हो गई है। इन्होंने मुझे कोई भी कुछ नहीं मुझे मूल दिए जहाँ कि जहाँ कोई इसका पराया भी है, जहाँ कोई अपना नहीं है। मेरे सब अपने कसम। सभी बोलते हैं कश्मीर ऐसा, पर हमें नहीं लगा कि ऐसा है। हमें अपने घर की इतनी याद नहीं आती जितनी इन लोगों की आती सर जहाँ रहते हुए हमें। ये राकेश सिंह एक कारपेंटर था यहाँ पे। ये पिछले कई सालों से यहाँ पे काम करता था। कारपेंटर था ये और इसके बहुत सारे साथी यहाँ पे काम कर रहे हैं। आज अचानक सुबह कुछ 11 बजे के करीब उसके जहाँ पर वो रहता है अपने डेरे पर, तो वहाँ इसकी लाश पाई गई। चवली पंजाब से ताल्लुक़ रखता है। इसको 2-3 महीने, ये पिछले कई सालों से आता था, लेकिन आज इसको 2-3 महीने हो गए यहाँ पे काम करते हुए। लेकिन आज सुबह जब उसकी लाश यहाँ पर पाई गई तो इसके बाद हम गाँव वालों ने यहाँ पर बहुत कोशिश की उसको घर भेजने की, लेकिन आजकल वो हालात नहीं है यहाँ पर कि हम उसमें कामयाब नहीं हो गए इसको घर भेजने में। इसके बाद पूरे गाँव के यहाँ पर हमारे जो जवान हैं, हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, छोटे बड़े सब आ गए और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। इंसानियत की एक मिसाल कायम कर दी उन्होंने यहाँ पर। शोपियां में कोरोना वायरस के 8 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। जिले में अब 63 मुस्बत केस रह गए हैं। इन 8 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। अब इन्हें इंतजामिया के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। डिस्चार्ज मरीजों की डॉक्टरों और दीगर अस्पताल इंतजामिया ने हौसला अफजाई की और पुरजोश अंदाज में रवाना किया। कश्मीर न्यूज़ में दोबारा आपका खैर मकदम है। लगातार लॉकडाउन रहने की वजह से वादी कश्मीर में तकरीबन हर शोबा मुतासिर है, जिसमें फूलों का बिजनेस भी शामिल है। नर्सरी मालिकीन को इस मरतबा मौसमी पौधों को फेंकना पड़ रहा है। अगर सूरत हाल में बेहतरी नहीं आती है तो नर्सरियों में काम करने वाले बेशतर अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। पेश है हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये रिपोर्ट।
रियाज अहमद वादी कश्मीर की मशहूर नर्सरी के मालिक हैं। वो पूरी वादी में फूलों के पौधे सप्लाई करते हैं। रियाज अहमद लॉकडाउन की वजह से उनके बिजनेस को हो रहे नुकसान पर बेहद मायूस हैं, बेहद दिल बर्दाश्ता है। फूलों के पौधे लगाने का अहम सीजन मार्च और अप्रैल होता है। रियाज अहमद के जैसे बिजनेसमैन न सिर्फ घर में उगाए गए फूलों के पौधे रखते हैं बल्कि बैरूनी रियासतों से दरामद भी करते हैं। लेकिन लॉकडाउन ने रियाज अहमद को तमातर सीजनल पौधे फेंकने पर मजबूर कर दिया। रियाज का कहना यही है कि इस साल उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गुज़िश्ता साल अगस्त के बाद पैदाशुदा हालात ने उनके बिजनेस को बेहद मुतासिर किया था, ताहम उन्हें उम्मीद थी कि वो इस सीजन में नुकसानात की भरपाई कर पाएंगे, लेकिन अब इनकी परेशानियां मजीद बढ़ गई हैं। तो इससे जो हम बंद रहा, इससे हमारा काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। जो हमारा सीजनल है वो फेंकना पड़ा, तो इससे हमारा बहुत माली नुकसान हो गया है। बाद हमारा नवंबर में सीज़न होता है उस सीडलिंग का, उसमें भी बर्फ़बारी हुई यहाँ से, उसमें भी नुकसान होगा। अब सोच रहे थे कि हम इसमें अभी मार्च में ये रिकवर करेंगे, लेकिन अभी ये हो गया अचानक से ही, तो इससे बहुत हमारा नुकसान हो गया। और जितना लास्ट ईयर हमारा इस टाइम में सेल हुआ उस मतलब 100% में से 25% अभी सेल हुआ है। तो बाकी तो ये जो सीजनल है सारा फेंकना पड़ा, जो हमारा सीजनल है। रियाज की नर्सरी से 1 दर्जन से ज्यादा अफराद का रोजगार जुड़ा हुआ है। इन मुलाजमीन ने खदशा जाहिर किया कि अगर हालात में जल्द सुधार नहीं आया तो वो अपने रोजगार तक से ही महरूम हो सकते हैं। इन्हीं वर्करों की काविशों से ये रंग बिरंगे पौधे मार्केट में दस्तयाब होते हैं। सुबह से शाम तक इसी पर खड़े रहते हैं, फिर उम्मीद होता है कुछ चलेगा, थोड़ा हमारा घर भी चलता है। जैसे हम 10 या 15 आदमी काम करते हैं, हमारा घर भी चलता है। तो जब यहाँ कुछ आएगा नहीं तो हमारा घर भी कैसे चलेगा। तो यही है, हमारी भी उम्मीद इसी पर होती है, हमारा घर भी होता है। इस साल आगे क्या उम्मीद है? सर उम्मीद है अब कुछ सरकार अगर करेगी, कुछ गवर्नमेंट करेगी तो थोड़ा हो जाएगा। जिस हिसाब से चल रहा है तो मुश्किल है, ऐसे क्या बनेगा अगर ऐसे ही रहेगा हालात। तो हमारा काम पूरा बैठ गया, नवंबर में भी नहीं चला, पिछले साल भी हो गया ऐसे ही, थोड़ा हो गया था। इस साल तो पूरा ही बैठ गया। अब ऐसे अगर रहेगा क्या बनेगा फिर। यकीनन लॉकडाउन ने मुख्तलिफ शोबों की रफ्तार धीमी कर दी है, ताहम जिस मकसद के लिए ऐसा किया गया उसकी अहमियत और इफादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इंतजामिया को मुतासिरीन की मुश्किलात कम करने के लिए बाज़ाबातकारी की पॉलिसी वज़ा करने की बेहद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। 2RR ने मास्क बनाने की एक पहल शुरू की है। उन्होंने कुंजुर, नाराबल, बीरवा और पटन में बेरोजगार नौजवान लड़कों और लड़कियों को मास्क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। उन्हें फौज की जानिब से मास्क बनाने पर मुआवजा दिया जाता है। गगरपुरा कैंप के मेजर मिश्रा ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वो 30,000 मास्क तैयार करने का मंसूबा रखते हैं। इसमें अब तक 10,000 मास्क तैयार किए जा चुके हैं। ये मास्क जम्मू कश्मीर पुलिस, महकमे हेल्थ, म्यूनसिपल कमेटियों और आम लोगों में तकसीम किए जा रहे हैं। मकामी नौजवानों ने भी आर्मी के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया। एक कैंप लगाया है और लोगों को मास्क बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं, और जिसमें हमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और वो बनाने के बाद हमने इन बच्चियों को वो दे दिया है। और उसके बाद वो है फ्री ऑफ कास्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत और आम लोगों को वो फ्री में दे रहे हैं। और हम मशकूर है आर्मी 2RR कैंप ये जो यहाँ गगरपुरा का है, उनके हम मशकूर है। उन्होंने जो है कबल वक्त और फिल वक्त उन्होंने इस पे कदम उठाया है और ये जो है मास्क बनाने का काम शुरू किया है। कठुआ से राहत की खबर है। कठुआ में कोरोना वायरस का वाहिद मरीज सेहत याब होकर अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपने आबाई गांव पहुंचने पर पुलिस इंतजामिया ने इनको फूल माला पहनाकर इस्तकबाल किया। घर वालों ने भी खुशी का इजहार किया और उसकी आरती उतार कर इस्तकबाल किया। अब कठुआ जिले में कोई भी मुस्बत केस नहीं है। लोग तो वैसे भी अवेयर हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लॉकडाउन नियमों का पालन करें और जितना हो सके बाहर ना आए। एडमिनिस्ट्रेशन की भी मदद करें, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर रहा है वो समझो आप अपने आप की मदद कर रहा है। जो कोरोना के खिलाफ जंग भारत ने छेड़ी हुई है, जिस हिसाब से
लोगों ने इसको लिया है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये हम जंग जीतेंगे। बड़ी खुशी है हमें, वो ठीक होके घर पे आ गए, बड़ी ज़्यादा खुशी है। मैं सभी का थैंक यू करती हूँ, डॉक्टर्स का जिन्होंने मेरे पापा को ठीक करके घर पे भेज दिया। तो ये 18 को हमने इसका सैंपल लिफ्ट किया और 21 को इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें ये पॉजिटिव पाया गया है। 21 तारीख शाम को ही हमने इसे जो डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल है, चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल जम्मू, वहाँ हमने इसको भेज दिया था एम्बुलेंस में। और ये 21 तारीख से लेके वहीं पे इलाज इसका चल रहा था और अभी 2 इसके जो टेस्ट हैं वो नेगेटिव पाए गए और इसको कोरोना फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। फुली ट्रीट होके ये हमारे पास वापस अपने घर आ गया है। तो ये एरिया भी हम कहेंगे अभी कोरोना फ्री है और हमारा डिस्ट्रिक्ट भी कोरोना फ्री हो चुका है। लद्दाख में आज कोरोना वायरस के मजीद 4 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। इनमें करगिल से 3 मरीज जबकि लेह से 1 मरीज है। अब लद्दाख यूटी में कुल 21 मुस्बत केस हैं। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी रिगजन संपल ने बताया कि बैरून रियासतों में फंसे लद्दाखियों को निकालने का काम जारी है और आज भी 230 तलबा करगिल पहुंचे हैं। आज का जो हमारा पॉजिटिव केसेस का सेकंड नेगेटिव आया है उसको गिनकर लद्दाख में अब 24 हमारे एक्टिव केसेस रह जाएंगे, जिसमें से लेह में 19 होंगे और कारगिल में 5 होंगे। आपको जानकारी है कि छुशुत गुम्मा लद्दाख का पहला कंटेनमेंट जोन था। वहाँ से जो हमारा लास्ट नेगेटिव केस आया था वो 3 अप्रैल को आ गया था। तो अब समय पूरा हो गया है, तो आज हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि छुशुत गुम्मा को कंटेनमेंट जोन से हटाएंगे और इसके बारे में आज ही जो डीसी ले हैं वो एक उसमें ऑर्डर जारी करेंगे। कल शाम से आज तक हमें लगभग 500 कोविड-19 के सैंपल्स के रिजल्ट मिले हैं। सारे सैंपल्स हमारे नेगेटिव थे। इसमें छुशुत युक्मा का हमारे एक पॉजिटिव केस था जो कि उनका एक सैंपल जो है नेगेटिव आया था। आज उनका दूसरा सैंपल नेगेटिव आया है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, तो आज उनको हम लोग रिलीव भी करेंगे। ज़ंस्कार तलबा यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि तलबा यूनियन ने कहा कि लद्दाख के दरमानदा तलबा को बसें फराहम नहीं की जा रही हैं। उन्होंने इस सिलसिले में इक़दामात की मांग की। ज़िला पुलवामा में आज जुमा और रियाज नाइको की हलाकत के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इंतजामिया ने पहले ही लोगों से अपील की थी कि वो आज भी मसाजिद के बजाय घरों में ही नमाज जुमा अदा करें। इस दौरान कस्बा पुलवामा में सख्त बंदिशें आयद थीं। एमरजेंसी में चलने वाले अफराद से भी पूछताछ की जा रही थी। कोरोना वायरस के पेश नज़र जिला शोपियां में लोगों की नक्लो हरकत पर लगातार पाबंदी आयद है। जिले में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद हैं। निजी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिले के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को खारदार तार से सील कर दिया है। जिले के मेन रोड पर भी रुकावटें खड़ी की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ उन्हीं अफराद को चलने की इजाज़त दे रही हैं जिनके पास इंतजामिया की जानिब से जारी करदा पासेस हैं। SHO शोपियां जावेद अहमद लोगों को लगातार कोरोना के बारे में जानकारी फराहम कर रहे हैं। जिला अस्पताल किश्तवाड़ में अभी तक 300 नमूने जमा किए गए हैं। कोरोना वायरस से मुताल्लिक जानकारी के लिए सरकार की जानिब से उठाए गए इक़दामात की बिना पर जिला इंतजामिया किश्तवाड़ काम कर रही है। जिला अस्पताल किश्तवाड़ ने कोविड-19 सैंपल कलेक्शन सेंटर कायम किया है। किश्तवाड़ में बगैर टेस्ट के जो भी बाहर से आता है उसका यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है। नमूने जमा करने के बाद उनको उधमपुर भेजा जाता है। 1 या 2 दिन में नतीजे आते हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कल जितने भी नमूने जांच के लिए भेजे गए थे वो सब मनफी पाए गए हैं। क्वारंटीन में रखे गए 2500 अफराद को जल्द डिस्चार्ज करने को यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया डोडा ने 3 अस्पतालों में सैंपल कलेक्शन सेंटर कायम किए हैं। SDH गंधू में 375 नमूने जमा किए गए हैं। SDH ठाटरी में 222 और SDH भद्रुआ से 450 नमूने जमा किए गए हैं। इन नमूनों को जम्मू भेजा जा रहा है। नमूनों की बरवक्त जांच से जिले को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सकता है और क्वारंटीन सेंटरों में भीड़ कम हो जाएगी। करता था शिमला में और हाँ वहाँ से हमें आज यहाँ पे लाया गया है भद्रवा में। तो यहाँ पे आज हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। से यहाँ लाया गया, अगर हमारा टेस्ट मतलब अच्छा हो गया तो हम घर वापस लौटेंगे अपने घर वालों के साथ। 317 सैंपल्स लिए हैं। मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो सबसे हाईएस्ट है अभी तक। इस माह रमज़ान के महीने में जो रोज़ेदार लोग हैं वो अपने घरों में जल्दी जा सकेंगे, अपनी ईद मना सकेंगे, आराम से घरों में रोज़ा रख सकेंगे। और दूसरी जो मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेस रहती है कि हमें जी क्वारंटाइन किया गया है, वो स्ट्रेस उनकी रिलीज़ हो जाएगी।
जीएमसी राजौरी के बर्खास्त किए गए पैरामेडिकल स्टाफ का खामोश एहतजाज जारी है। ये अफराद मेडिकल कॉलेज के अहाते में एहतजाज कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि इनको एक्सटेंशन लेटर दिया जाए। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए इन लोगों ने कहा कि वो सरकार से इंसाफ चाहते हैं। उनका कहना है कि इनकी मांग कोई भी सुनना नहीं चाहता है। 5 डेज हो गए यहाँ पे स्ट्राइक करते हुए और हम गवर्नमेंट से बार बार इसी बारे में अपील कर रहे हैं कि हमारी हमारे इस आसारों पे थोड़ी नज़र डालें, क्योंकि वो इसी बात पे अब हर बार हम जाते हैं उनसे मिलने या किसी से भी कोई भी डिस्कशन करें, वो हमें यही कह रहे हैं कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो भी था 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट था तो SRO 24 में GMC श्रीनगर में भी लगे हैं, उनको भी एक्सटेंशन मिली हुई है। 384 वालों का भी यही सिस्टम था, उनको भी एक्सटेंशन मिली है, तो हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफी हो रही है। GMC राजौरी में SRO 24 के अंडर रिक्रूट हुए थे, लेकिन जो जैसा कि आप देख रहे हैं हमें आज 36th डे एंटर हुआ हमारा स्ट्राइक का, जिसमें 16 डे हमारा हंगर स्ट्राइक का है। लेकिन हम ये समझ नहीं आ रहा कि जो गवर्नमेंट है वो खामोश तमाशाई बनकर हमारे हंगामा आराई पर मजबूर क्यों कर रही है। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन के बाद बैरून रियासत के कई मजदूर दरमांदा होकर रह गए हैं। बेलिसा में आसाम के कमरब जिले से ताल्लुक रखने वाले कई मजदूर दरमांदा हो गए हैं। इन मजदूरों का कहना है कि उनके पास दीगर जरूरी अशिया के साथ साथ ग़िज़ाई अजनास भी खत्म हो गए हैं। उन्होंने इंतजामिया पर इल्जाम लगाया कि उनकी नोटिस में होने के बावजूद इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि इलाके में फंसे तमाम गैर रियासती मजदूरों को उनके आबाई इलाकों को वापस रवाना करने के लिए जल्द इंतजाम किए जाएं। बैरून रियासतों के लोगों के लिए जिला इंतजामिया सामा ने 3 रजिस्ट्रेशन काउंटर खोले हैं। इंतजामिया ने इन अफराद की रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया है। सरकार की हिदायत के मुताबिक इन लोगों को अपने रियासतों को वापस भेजा जाए। लोगों की लिस्टें तैयार कर रहे हैं ताकि जैसे ही सरकार का आदेश आए कि जिन लोगों को वापस जाना उनको भेजा जाए तो हमारे पास सारा डाटा तैयार हो और हम इमीडिएटली उन लोगों को रवाना कर दें। तो उसी सिलसिले में हमने ये 3 काउंटर लगाए हुए हैं और कल तक मेरे ख्याल कोई 3000 के करीब या 2900 के करीब हमारी रजिस्ट्रेशन हो। जिला रामबन में गरीब और मुस्तहक अफराद तक खाने पीने की अशिया पहुंचाने के लिए इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रामबन यूनिट की जानिब से एक कैंप का इनकाद किया गया। सोसाइटी के रजाकार ज़ाती तौर पर पैसे जमा करके राशन किट्स खरीदने के बाद रामबन के गर्दनवाह में तकसीम कर रहे हैं। वो पंचायत सेरी, परनोत, करोल, महाड़ और कभित इलाके में मुस्तहक अफराद तक पहुँचने का काम कर रहे हैं। सोसाइटी के ज़िला नायब सदर रामबन बशीर अहमद शेख के मुताबिक वो इस मिशन को मुस्तकबिल में भी जारी रखने का इरादा रखते हैं। DDC पुंछ राहुल यादव ने SSP रमेश अंग्राल के हमरा ज़िले के क्वारंटीन मराकज़ का दौरा किया। उन्होंने क्वारंटीन मराकज़ का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से मुलाकात की और उनकी हालात का जायज़ा लिया। DC ने क्वारंटीन मराकज़ के मुलाजमीन को बैरून रियासतों के लोगों को सहूलत फराहम करने और उनकी COVID-19 टेस्टिंग की हिदायत जारी की। ज़िले में अभी तक तकरीबन 3000 बैरून रियासतों के लोगों को लाया गया है। MD J&K फॉरेस्ट कॉरपोरेशन नोडल अफसर ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया। वसु यादव ने दरमांदा मुसाफिरों को वापस लाने और ले जाने के लिए किए गए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने इस जगह का भी जायज़ा लिया जहां से दरमांदा मुसाफिरों का बसों में बिठाकर घर रवाना किया जा रहा है। सांबा पुलिस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पंजाब के 4 मंशियात स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 354 ग्राम हेरोइन और 13.7 किलो फ़िकी जब्त की है। सांबा पुलिस की जानिब से एक मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। मंशियात की ये खेप ज़रूरी अशिया ले जा रहे एक ट्रक के जरिए पंजाब से कश्मीर स्मगल की जा रही थी। लॉकडाउन के बीच किसानों को हो रहे नुकसान के पेश नज़र उन्हें महकमे ज़राअत में राहत दी है। ज़िला पुंछ में महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों में मकई और धान के बीज तकसीम किए गए। महकमे ने किसानों को ये बीज होम डिलीवरी के जरिए फराहम करना शुरू कर दिया है। किसानों को ये बीज निहायत ही कम कीमतों पर फराहम किए जा रहे हैं। चीफ एग्रीकल्चर अफसर का कहना है कि महकमे ने किसानों की सहूलत के लिए ये इक़दाम किया है। पुंछ में पलस्त और बेहतर दरिया के दरमियान 17 साल लड़के की लाश को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने कानूनी लवाजमात पूरे करने के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए अहल खाना के सुपुर्द कर दिया। वाज़र के 5 रोज़ कबल चंदक गांव के रहने वाले मोहम्मद फारूक नामी शख्स का 17 साल बेटा उमर फारूक दरियाए पलस्त में नहाने गया था। पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो दरिया में डूब गया। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया, ताहम वो लाश को बरामद करने में नाकाम हुए। आज दोपहर एक ट्रैक्टर वाले ने लाश को दरिया में तैरते देखकर पुलिस को इतला दी। बाद में पुलिस ने लाश को बरामद कर लिया।
सरकार की जानिब से एमजी नरेगा कामों पर पाबंदी हटाने के बाद मजदूरों में खुशी का माहौल है। कश्मीर में मौसम सरमा में तामीराती काम बंद हो जाते हैं। इस मौसम में मजदूरों का रोजगार भी ठप होकर रह जाता है। वादी के बेशतर मजदूर गर्मियों के मौसम में कामकाज करके अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबके को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सरकार के इस फैसले से मजदूर तबका लोगों की ज़िंदगी वापस पटरी पर लौट आने का इम्कान है। मजदूरों ने सरकार के इस फैसले की सताइश की। हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया क्योंकि हम बेरोज़गार और गरीब लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसी आमदनी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसके ज़रिए वो अपने घरों को चला सके। लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया कि लोगों को जो रोज़गार दी तो वो काम अपने चला रही हैं। हम लोग सरकार के शुक्रगुजार है जो ये डील दी है नरेगा काम करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।